Hello friend, in the course of physics for IIT JEE and medical examination, medical entrance examination, today we will start concept of physics part 1, HC Verma solution, and chapter 3, rest of motion kinematics. In this video we will cover problem number 1 to 10 that has been given in this chapter. Okay, so first problem क्या है आपका? First problem है a man has to go 50 meter due north. एक man को 50 meter north जाना है, 40 meter east में जाना है, ठीक है, और 20 मीटर साउथ में जाना है. सो व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक फ्रॉम द फील्ड, ठीक है, मतलब सिंपली इसके द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड. सो इस चैप्टर में हम तीन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, सेकंड कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज डिस्टेंस एंड थर्ड कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज डायरेक्शन, ठीक है. सो पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में. ओके, सो लुक, ये डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम डायग्राम यूज करते हैं. यहाँ पे दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, दिस वन इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट. ओके, ऑल्सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. सो फॉर एक्स एक्सिस योर यूनिट वेक्टर इज आई कैप. ओके, certainly the unit vector for negative x-axis is minus I cap. Unit vector for y-axis is j cap. So for minus y-axis is minus j cap. Okay. So पहले हम क्वेश्चन का डिमांड क्या है हम देखते हैं. तो एक पर्सन है जो 50 मीटर नॉर्थ में जाता है, ठीक है. सो 50 मीटर नॉर्थ मीन्स अप डायरेक्शन. सो 50 मीटर नॉर्थ, पर्सन गोज 50 मीटर नॉर्थ. ओके, देन पर्सन गोज 40 मीटर ईस्ट. East means this direction, this one. So person goes 40 meter east, okay, and then 20 meters south. South means this direction, this one. So this is 20 meters south. Okay. So आपको find out करना है what distance he has to travel to reach the field. So what is distance? Distance is actual path covered by the person or actual path covered between 2 points. Actual path length between 2 points, that is called distance. And what is the displacement from his house to the field? So displacement is distance between final point and initial point. Okay, so in this question your displacement is this one. This one is your displacement. So we have considered this as r. Okay, and you have to find out distance also. Okay, so I am drawing some fresh diagram. So this one was 50 meter. Then person moves for 40 meter, and then person साउथ डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस कवर करता है? 20 मीटर. 20 meter. Okay. So you have to find out distance. Distance is actual path length. Okay, so let us consider, ठीक है, this one is point A, this one is point A, this is point B, and this is point C. Okay, so you have to find out the distance. So distance is actual path length between 2 points, between 2 पॉइंट्स. तो यदि आप हम डिस्टेंस को d से डिनोट करते हैं तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस आपका होगा मॉड ऑफ वेक्टर OA प्लस मॉड ऑफ वेक्टर AB प्लस मॉड ऑफ वेक्टर BC. ओके, बिकॉज मॉड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन. सो OA इज 50 मीटर. सो OA इज 50 मीटर. ओके, प्लस योर AB इज 40 मीटर. So it is 40 meter, but your BC is minus 20 meter. Okay, so it is 50 meter plus 40 meter plus 20 meter, that is 110 meter. तो ये क्या होगा? ये आपका होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. नाउ सी, इसे हमने मान लिया वेक्टर r. ओके, दिस वन इज वेक्टर r, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. ओके,
So if this one is 50 meter, certainly the entire one is 50 meter, okay, but this is minus 20 meter because it is along minus y axis, okay, so certainly this will be 30 meter, this will be 30 meter, and this is 50 meter, that, sorry, 40 meter, that's why it is also 40 meter. तो मैंने आपको पढ़ाया था, हमने पढ़ा था पहले, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ दिस वेक्टर आर इक्वल टू 40 मीटर आई कैप प्लस 30 मीटर जे कैप. एक तो आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है. सो योर डिस्प्लेसमेंट आर इज 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप. तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर. Okay, so this is 1600 plus 900, that is 2500, that is 50 meter. Now displacement is a vector quantity, so certainly it has direction. तो हमने पढ़ा था वेक्टर के लॉ में कि डायरेक्शन जो वेक्टर का होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट. इस वेक्टर का y कंपोनेंट कितना है, 30 है, x कंपोनेंट 40 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4. ओके, सो योर डायरेक्शन इज tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4. ओके, you may also find out this problem by some other method. Okay, so alternative method. So you have displacement r, तो r को आप लिख सकते हो, यहाँ देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप वेक्टर r इक्वल टू लिख सकते हो 50 आई कैप, सॉरी 50 जे कैप प्लस 40 आई कैप, क्योंकि 40 क्या आपका एक्स एक्सिस में है, माइनस 20 जे कैप. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 20 दैट इज 30 जे कैप प्लस 40 आई कैप और 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप. ओके, रेस्ट आप ऐसे ही कैलकुलेट कर दोगे सिमिलर मेथड से. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. तो पहले तो आप क्या करो, पहले तो डायग्राम बनाओ आप, ठीक है. ओके, और यहाँ पे मोशन कहाँ पे हो रहा है, मोशन इज पार्टिकल गोज अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है. ओके, सो दिस वन इज ओरिजिन. ओके, ओरिजिन. So what is the coordinate of origin? Origin is 0 0. Okay. So particle starts from origin. Particle यहाँ से start करता है, ठीक है. Goes along x axis to the point 20 0. तो कहाँ पे जाता है ये 20 0 पे, मतलब इस पॉइंट पे जाता है. मान लो ये पॉइंट है आपका 20 0. ओके, एंड देन रिटर्न टू द सेम लाइन, ठीक है, रिटर्न अलोंग द सेम लाइन to the point at minus 20 0. Okay, minus 20 0. Okay, so find the distance and displacement of the particle during the trip. Okay, तो distance क्या होता है, distance होता है actual path length. So your distance is actual path length, मतलब actually particle कितना distance travel किया है, ठीक है. तो देखो पहले पार्टिकल कहाँ जाता है, पहले पार्टिकल जाता है OA डायरेक्शन में, ठीक है. फिर पार्टिकल क्या होता है, OA से AO में आता है, तो पार्टिकल आता है तुम्हारा AO डायरेक्शन में. देन पार्टिकल O से A डैश पे जाता है, तो OA डैश डायरेक्शन में. अब देखो यहाँ पे O to A कितना होगा, 20 मीटर है, तो ये आपका हो गया 20 मीटर. बट जब सेम पार्टिकल रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो डिस्टेंस कितना होगा, ये -20 होगा. ओके, और यहाँ तो आप ओरिजिन से वैसे नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो ये भी आपका होगा -20, ठीक है. सो दिस इज 20 प्लस मॉडुलस ऑफ -20 इज 20 एंड मॉड ऑफ -20 इज अगेन 20, सो इट इज 60 मीटर. फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Displacement is distance between initial point and final point. So distance between
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन, पॉइंट ऑफ मोशन। अब यहां देखो आप, यहां पे क्या है, ये जो डायग्राम है आपका, आपने क्या किया, जर्नी को स्टार्ट किया यहां से, ओरिजिन से, फिर आप इस पॉइंट पर गए, ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था कितना, 20 और 0। अगेन क्या हुआ, आप इस पॉइंट पे वापस आए, ए डैश -20 0। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, योर डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। Initial point, so your final point is -20 and initial point is 0, so it is -20, so displacement is 20 meter along negative x-axis, hence displacement is 20 meter along negative एक्स एक्सिस। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची वाया एयर, ओके, एंड 320 किलोमीटर वाया रोड। ओके, तो देखिए हमने क्या किया ना, हमने इसको मान लिया एयर है, ठीक है जी, ये है आपका एयर रूट, और इसको हमने मान लिया रोड रूट। इसको हमने मान लिया रोड, ठीक है, ये है रोड। तो देखो रोड से कितना डिस्टेंस है, तो यानी पटना टू रांची, पटना टू रांची वाया एयर, तो देखो वाया एयर तो आपका है 260 किलोमीटर, बट वाया रोड इट इज 320 किलोमीटर। ओके, अब आप यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, टाइम कितना लगता है वाया एयर, एंड एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट टू गो फ्रॉम पटना टू रांची, सो टाइम बाई एरोप्लेन इज 30 मिनट। 30 मिनट, तो 1 आवर में कितने क्या कहते हैं मिनट होते हैं बताओ, 60 मिनट, तो 30/60, ओके, 60 कितना हो जाएगा, 1/2 आवर। ओके, नाउ डिलक्स बस कितना टाइम लेता है, तो टी बस ये आपको लेता है 8 आवर। ओके, दिस टेक्स 8 आवर। तो आपको पता करना है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, ओके, एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, एंड फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बस। तो पहले तो हमें स्पीड निकालना है, सेकंड हमें फाइंड करना है वेलोसिटी। तो पहले आप स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस को समझ लो, ठीक है। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, स्पीड एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज distance covered by time। Okay, average is distance covered by time। Okay, now what is average velocity? So velocity is displacement by time। नाउ यू नो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। ओके, सो डिस्टेंस फॉर बस कितना होगा बताओ, 320 किलोमीटर। ओके, 320 किलोमीटर। नाउ डिस्प्लेसमेंट फॉर बस, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, बस के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा,
तो 260 किलोमीटर। नाउ डिस्टेंस फॉर प्लेन, तो प्लेन एक्चुअली किस पाथ को फॉलो करता है? प्लेन फॉलो करता है एयर रूट को। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन होता है एक्चुअल रूट, ठीक है, सॉरी एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द प्लेन और एरोप्लेन दैट इज 260 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस क्या होगा? 260 किलोमीटर होगा। और शॉर्टेस्ट पाथ कितना है पटना और रांची के बीच का? तो ये भी आपका है 260 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब प्लेन के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा? सेम होगा। लेकिन बस के लिए एक्चुअल पाथ क्या है? रोडवेज। तो रोडवेज का लेंथ कितना है? 320 किलोमीटर। तो बस के लिए डिस्टेंस होगा 320 और डिस्प्लेसमेंट होगा 260, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ। नाउ आपको फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बस। सो एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, ठीक है जी, प्लेन। तो प्लेन के लिए डिस्टेंस कितना है बताओ? डिस्टेंस है आपका 260। टाइम कितना लेता है प्लेन? 1/2 आवर। तो 260 बाई 1/2 दिस इज किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो जाएगा? 260 इंटू 2 कितना होगा? 520 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड ऑफ बस। तो बस के लिए डिस्टेंस कितना है? 320। बस कितना टाइम लेता है? 8। तो 8 km पर आवर। कितना हो जाएगा ये? 8 4 जा 32, दैट इज 40 km पर आवर। नाउ आपको फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपको प्लेन का फाइंड आउट करना है। तो क्या है? 260 क्या है आपका डिस्टेंस है, 1/2 क्या है? टाइम है। तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 520 होगा। नाउ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस? यदि आपको बस की एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो बस के लिए एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना है? 260। टाइम कितना लेता है? 8 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24, 20 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 32.5 km पर आवर। km पर आवर, दिस इज आंसर। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार, मतलब अपने कार से जो है आसपास का दृश्य नजारा देखने के लिए निकलता है, ठीक है। तो इसके मीटर का रीडिंग है 12352 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं भाई, ये पर्सन है ये साइट सीइंग के लिए घर से निकलेगा ना। चलिए तो घर से कहीं निकल गया अगल बगल में साइट सीइंग के लिए। तो ये इसका होम है और ये है इसका डेस्टिनेशन फॉर साइट सीइंग या साइट, ठीक है। तो जब ये घर से निकलता है, ठीक है, तब इसका स्पीडोमीटर का रीडिंग कितना है? तो दिस रीडिंग इज 12352 किलोमीटर, ओके। व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 आवर, ठीक है, द रीडिंग इज 12416 किलोमीटर, ठीक है। तो जब ये घर से वापस आता है, मतलब एक बार ऐसे चला गया बेचारा, ठीक है, फिर ये बेचारा वापस आ गया, ठीक है, साइट सीइंग देख कर आ गया वापस घर, ठीक है जी। अब देखो कितना रीडिंग है स्पीडोमीटर का। तो अब स्पीडोमीटर का रीडिंग है 12416 किलोमीटर, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है कि और कितना टाइम में वापस आता है? 2 आवर में, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो अब देखो स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे तुम? अभी मैंने बताया था आपको एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो
डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगा इसका 12416 माइनस 12352, okay, it is 6 minus 2 4, 1 minus 8, 11 minus 5, that is 6, okay, 6 now, and 3 minus 3 0, 64 kilometer. But what is displacement? So his initial position is 12312 and final position is 12312. So his final position is 12352, I'm sorry, मतलब home, and final position is also 12352, so it is 0, okay, मतलब जिस पॉइंट पे इनिशियली था उसी पॉइंट पे फाइनली है ये, ओके, तो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज 0। इसका स्पीड क्या होगा, इसका एवरेज स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस आपका 64 किलोमीटर और टाइम कितना है 2 आवर, 64 किलोमीटर बाई 2 आवर, that is 32 kilometer per hour. But what about velocity? So displacement is 0 and time is 2 hours. So it is 0. Next question देखो, कहता है कि एथलीट टेक्स 2 सेकंड टू रीच मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। सो पहले हम तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पहले हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो आप जानते हो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सो इट इज v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। बाय कन्वेंशन हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि एक्सेलरेशन इज ए, मतलब एक्सेलरेशन को a से नोट करते हैं बाय कन्वेंशन, फाइनल वेलोसिटी को हम v से नोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से नोट करते हैं। और जनरली हम एज्यूम करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जब है, ठीक है, तो टाइम 0 है, ऐसा हमने मान लिया, ऐसा कि हमने स्पेसिफिक केस ले लिया, तो हमने फाइनल टाइम को t मान लिया, इनिशियल टाइम को हमने 0 मान लिया, इट इज v माइनस u बाई t। तो ये पहला रिलेशन हुआ कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। नाउ अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिख सकते हो ना कि at इक्वल टू v माइनस u। So what is v? Your v is u plus at. Your v is u plus at. अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या है। An athlete take 2 seconds to reach the speed of 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखना है, ठीक है, ये आपको काम आएगा, कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 1 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा इसको, ठीक है। यानी कहने को हम तो किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और जब मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, किलोमीटर पर आवर। ओके तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, इस क्वेश्चन में दिया कि एथलीट टेक्स 2 सेकंड टू रीच द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। सो एथलीट क्या करेगा, रेस्ट से स्टार्ट करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। एथलीट 2 सेकंड का टाइम लेता है 18 किलोमीटर के स्पीड को रीच करने में, 18 km पर आवर। मैंने क्या बताया था, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, इट इज 5 मीटर पर सेकंड। सो यू हैव इनिशियल वेलोसिटी, यू हैव टाइम एंड यू हैव फाइनल वेलोसिटी। ओके, नाउ v इक्वल टू u plus at, so your v is
5, u is 0, you have to find out a, and time is 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बताइए, 5/2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर। ओके, स्पीड जो ग्राफ है ये स्पीड और टाइम का फंक्शन है। ओके, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकंड। आपको ये पता करना है कि 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये कार। इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो y एक्सिस है यहाँ पे स्पीड है और x एक्सिस क्या है आपका टाइम है। ठीक है, ये टाइम है। ओके, तो यदि y एक्सिस आपका स्पीड है और x एक्सिस आपका क्या है, टाइम है। ओके, तो आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड इट्स एक्सीलरेशन। ठीक है, तो देखिए आप थोड़ा सा तुक्का लगाइए। ठीक है, वैसे बाद में आपको मैंने पढ़ाया भी जैसे कॉन्सेप्ट है कि कैसे एरिया वगैरह फाइंड करोगे, इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो y एक्सिस आपका है दैट इज मीटर पर सेकंड, यानी ये स्पीड है आपका। x एक्सिस आपका है टाइम। तो यहाँ पे देखो, यदि हम मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे तो कितना बचेगा, मीटर है ना जी, मीटर। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होगा, वो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बेस इनटू हाइट। ओके, और बेस है आपका टाइम और हाइट है क्या आपका स्पीड। तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मीटर आ गया। मीटर क्या है आपका, मीटर इज योर डिस्टेंस। ठीक है, यानी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए इन स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, यदि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे, एरिया अंडर द कर्व को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सेंस लगाते हैं, कॉमन सेंस। इट इज थीटा। सो इफ दिस वन इज थीटा देन व्हाट इज tan थीटा, तो tan थीटा इज y एक्सिस बाय x एक्सिस। y एक्सिस इज मीटर पर सेकंड, x एक्सिस इज सेकंड, so it is meter per second square, it is unit of acceleration. So in a speed time graph, okay, the slope of the graph gives acceleration. तो इस रूल को याद रखिएगा। ठीक है, in a speed time graph, ठीक है, ग्राफ डिस्टेंस इक्वल टू area under the curve, acceleration equal to slope of curve, slope of the curve, ठीक है। सो यहां पे एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अब 1/2 बेस कितना है आपका, देखो यहाँ फाइंड आउट करो बेस कितना है, बेस है आपका 8 और हाइट कितना है 20। 8 इंटू 20, 2 10 20, दैट इज 80 मीटर। तो 80 मीटर क्या होगा, इसका डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो मैंने बताया था क्या कि स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आपका होता है y एक्सिस बाय x एक्सिस। y एक्सिस क्या है आपका 20 मीटर और x कितना है 8, तो 20/8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5/2 is 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकंड, और इसके अलावा इसके बेस पे आपको प्लॉट करना है पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ओके, एक्सेलरेशन इज गिवन, और हम क्या करते हैं ना, इस ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने इसको मान लिया फर्स्ट पार्ट, इसको हमने कंसिडर कर लिया सेकंड पार्ट, और ये आपका है थर्ड पार्ट, ठीक है। सो पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, ओके। पार्ट 1, इफ एनी पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो पार्ट 1 के लिए u कितना है आपका, 0 है। इस पार्टिकल का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन आपका है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और टाइम है 10 सेकंड, तो टाइम इज 10 सेकंड। तो आपको पता करना है व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 10 सेकंड। तो एक फॉर्मूला होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। और इस चैप्टर में आपने डिस्कस किया होगा। तो ये u इज 0, so ut इज 0, so it is half into acceleration is 5 and time is 10 square, so it is half into, sorry, it's 5 into 10 square is 100, so 250 meter, 250 meter. Now what is the velocity, ठीक है, what is the final velocity, okay, at the end of first part. So final velocity is u plus at. Now your u is 0, acceleration is 5 and time is 10, it is 50 मीटर पर सेकंड। ये पार्ट 1 हो गया आपका, ठीक है। नाउ पार्ट 2। अब यहाँ पे देखिए पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर टाइम तो आपका 10 to 20 मतलब 10 सेकंड है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है आपका, 0 है, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन आपका 0 है, तो डिस्टेंस s2 इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए u जो है वो आपका v1 है, ठीक है। v1 मतलब वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकंड इक्वल टू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन द इंटरवल ऑफ 10 to 20 सेकंड। सो योर v1 इज 50 मीटर पर सेकंड, ओके। और 10 to 20 सेकंड मतलब टाइम कितना है आपका, 10 है, इसको t2 मान लीजिए, t2। एक्सेलरेशन तो 0 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इट इज 500 मीटर, ओके। अब देखिए यहाँ पे एट द एंड ऑफ 20 सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी क्या होगा, 50 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी है आपका फॉर पार्ट 3, ये पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3। पार्ट 3, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकंड, ओके। पार्ट 3 ग्राफ में देखिए एक्सेलरेशन कितना है, -5, और टाइम कितना है, 10। तो एक्सेलरेशन आपका है -5 और टाइम है 10। सो डिस्टेंस s3 इक्वल टू ut मतलब 50 इंटू 10 प्लस हाफ AT स्क्वायर, सो हाफ a इज -5, टाइम इज 10 स्क्वायर, सो इट इज 500 - 1/2 इंटू 5 इंटू 100, so it is 500 minus 250, that is 250 मीटर। अब आपको इसको प्लॉट करना है, ग्राफ इसका ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ इसका ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करोगे, तो हमने मान लिया इसको 250, ये है आपका 500 मीटर, ये है 10 सेकंड, इट इज 20 सेकंड, इट इज 30 सेकंड, इट इज डिस्टेंस, इट इज टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
तो 0 to 10 सेकंड में आप कवर करते हो कितना, मतलब कितना मीटर, 250 मीटर। 10 to 20 सेकंड में आप कवर करते हो 500 मीटर। देन अगेन कवर करते हो आप कितना, 250 मीटर। ओके, या रफली इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, 250, 500, देन 250, सॉरी देन 250। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, फिगर शोज ग्रुप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, मतलब ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है अलोंग एक्स एक्सिस। आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकंड। ओके, तो आपको पहले फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकंड, देन फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकंड। तो 3 पार्ट है क्वेश्चन का। तो अब यहाँ पे भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, मैंने क्या बताया था आपको, स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी और मतलब स्पीड दोनों सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम नहीं है, मतलब डिफरेंस ये है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, बट डायमेंशनली दोनों सेम ही होता है। ठीक है, यानी ग्राफ का जो रिजल्ट स्पीड टाइम ग्राफ में आएगा, सेम रिजल्ट आपको आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, पहले आप क्या करोगे, पहले आप निकालोगे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ना, तो पहले आप स्लोप निकालो, मतलब इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू निकालो। कितना होगा tan थीटा आपका, tan थीटा होगा दिस वन 8 - 2 दैट इज 6, और ये कितना होगा 10 - 0, तो 6/10 कितना होगा, 6/10 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों सेम होगा। ठीक है, तो इस कर्व के नीचे ग्राफ आप निकाल लो। ठीक है, ये क्या है, ट्रापेजियम है। ठीक है, या तो ट्रापेजियम है, अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, पहले आप इसका एरिया फाइंड आउट करो और फिर इसका एरिया फाइंड आउट करो। ठीक है, दोनों का एरिया अलग अलग फाइंड आउट करो, दोनों को ऐड कर दो, या रहते हुए ट्रापेजियम का जो फॉर्मूला होता है उससे इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, सो एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया। एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप है tan थीटा, और tan थीटा आपका है 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा यहाँ पे इस केस में, और ये होगा आपका A1 + A2, मतलब फर्स्ट पार्ट का एरिया और सेकंड पार्ट का एरिया। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना होगा, ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 10 और विड्थ कितना है 2, तो 10 × 2 प्लस सेकंड क्या आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है आपका, बेस आपका 10 और हाइट कितना है, हाइट तो हाइट है आपका 8 - 2 दैट इज 6, कितना होगा ये 20 + 30 दैट इज 50 मीटर। ओके, 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि this is displacement distance time graph. Okay, so figure shows the x coordinate of particle going along x axis as a function of time. So आपको पता करना है कि what is the average velocity during 0 to 10 सेकंड। आपको 0 to 10 सेकंड के बीच में वेलोसिटी निकालना है। तो देखो वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, तो मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या करोगे, स्लोप फाइंड आउट करोगे। तो आपको पता करना है एवरेज वेलोसिटी 0 to 10 सेकंड के बीच में, 0 to 10 सेकंड के बीच में पता करना है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो फाइंड आउट करो आप। ठीक है, ये जो है आपका ये कितना है 100,
और 100 है कितना पे 10 पे, और 0 पे कितना है 0। तो देखो आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, तो फाइनल पोजीशन है 100 और इनिशियल पोजीशन है 0, तो 100 माइनस 0 और टाइम कितना है 10, कितना हो जाएगा ये 100 बाई 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे देखो क्या होगा, आपको स्पीड निकालना है। ठीक है जी, स्पीड निकालना है 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड और 2.5 सेकेंड ग्राफ क्या यूनिफॉर्म है, तो आप निकालोगे tan θ1। ठीक है, tan θ1 कितना होगा 50 बाई 2.5, 50 बाई 2.5 कितना हो जाएगा ये 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड निकालना है 5 सेकेंड पे आपको, तो v एट 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या है आपका 0 है ना, और टाइम कितना है वट एवर बी द टाइम, कितना होगा ये 0 होगा 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड के लिए क्या करोगे, इस ग्राफ को आप लोगे दिस वन tan θ2, तो tan θ2 की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 100 माइनस 50 बाई 10 माइनस 2.5 सॉरी 7.5 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। और थर्ड आपको फाइंड करना है 12 सेकेंड पे। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ क्या यूनिफॉर्म है तुम्हारा, यानी दिस वन θ3। ठीक है θ3। तो वेलोसिटी एट 12 सेकेंड कितना होगा ये, दिस वन इज 100, दिस वन इज 0 बाई 15 माइनस 10 दैट इज 5, कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे इसका ये एरिया फाइंड आउट करोगे और ये एरिया फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 40 सेकंड ओके इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड आल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसके अलावा एवरेज वेलोसिटी भी आपको फाइंड आउट करना। तो देखो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस होगा a1 प्लस a2। अब दोनों एरिया ऑलमोस्ट सेम है ना, तो कोई भी एक एरिया फाइंड आउट कर लो। तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 20 और हाइट कितना है, हाइट कितना है 5, 2 10 जा 10 कितना होगा ये 50, तो 50 मीटर। तो देखो टोटल जो एरिया होगा वो होगा 50 मीटर प्लस 50 मीटर कितना होगा ये 100 मीटर होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिया डिस्टेंस ट्रेवल। अब आपको फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है बताइए, वेलोसिटी आपका होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो फाइंड आउट कीजिए डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एरिया A1, ये तो 50 मीटर है आपका, बट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एरिया A2 कितना है माइनस 50 मीटर है ना। तो 50 मीटर माइनस 50 मीटर कितना होगा ये 0 मीटर। वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 बाई टाइम दैट इज 0। ओके, so in the next class we will discuss rest problems. Okay, thank you all.